نہیں وہ تو یہاں بیٹھے نا, آپ اس کو وہ نہ کریں, مینوپولیٹ نہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو میں دہشت گرد کہہ رہا ہوں ان کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ مارنگ کے باپ کا اپنا بیان ہے کہ میں نے 250 پنجابی مارا ہے, اس کا باپ بھی دہشت گرد تھا. پوری دنیا کے میڈیا پہ آپ اس کو مینوپولیٹ نہ کریں. نہیں ریفرنس یہی ہے, پوری دنیا کی میڈیا پہ آ رہا ہے. جو صبح شام شناختی کارڈ دے کے ایسا جینوسائیڈ دنیا میں کہیں ہوتا ہے. مہران بلوچ کا والد نے یہ سٹیٹمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 250 بندہ میں نے مارا ہے, ہاں وہ بیان آپ نے کہاں پڑھا؟ وہ ساری اخباروں میں پڑھا, آپ صحافیوں نے ہمیں بتایا, ہر اخبار میں, ہر جریدے میں, کہاں پہ؟ سوشل میڈیا. یار یہ تو آپ دیکھو, آپ کر رہے ہو مطلب مینوپولیٹ کر رہے ہو. جاتا ہوں کوئٹہ, مگر وہاں پنجابی جو ہے نہ کاروبار اب کر سکتا ہے, اور آج سے نہیں پچھلے 50 سال سے آپ لوگ مار رہے ہیں, آج سے نہیں مار رہے آپ لوگ. مجھے شامل کر رہے ہیں سر میں آپ کو بلوچ ہی سمجھ رہا ہوں نا. اچھا بلوچ دہشت گرد ہے. اور سیکورٹی اداروں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم پنجابیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, اور بی ایل اے کی جو سیاسی سپورٹ ہے جو کہ کوٹ مٹن دربار سے کی جا رہی ہے, جو کہ کوٹ مٹھن دربار سے کی جا رہی ہے, کوٹ مٹھن دربار سے مٹن دربار کے گدی نشین عامر قریجہ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں. عامر قریجہ, فرید قریجہ, اماد قریجہ 100 رکنی ایک سوشل میڈیا پر گروہ چلا رہے ہیں, اور یہ بی ایل اے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پنجابیوں کے خلاف, ٹی ایس ایل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پنجابیوں کے خلاف, ٹی ٹی پی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں پنجابیوں کے خلاف. یہ گروہ جو ہے یہ بی ایل اے کو سپورٹ کرتا ہے. السلام علیکم, نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج تو نہیں ہو رہا, لیکن آس پاس 2 احتجاج جاری ہیں. ایک احتجاج وہ جو 19 روز سے BYC بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جانب سے جاری و ساری ہے, وہ میرے رائٹ سائڈ پہ روڈ ہے اور دونوں طرف سے بلاک ہے, بند کیا ہوا ہے, کارڈن آف ہے. وہاں پر خواتین جو ہے بیٹھی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پیاروں کو جو لاپتہ کیے گئے ان کو رہا کرو, بازیاب کرو. ان کے اپنے مطالبات ہیں. آج 19ویں دن یہاں پر ایک اور احتجاج جو ہے وہ شروع کیا گیا, اور یہ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں, پنجابیوں کی ٹارگٹ کلنگ بند کی جائے. احتجاج بلوچستان میں پنجابیوں کی ٹارگٹ کلنگ ناقابل برداشت ہے. ریاست پاکستان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. ہمیں اپنی بہادر افواج پر بھرپور بھروسہ ہے. پنجابیوں کے قاتل اور ان کے سرپرستوں کو گرفتار کیا جائے, اور شہداء کے لواحقین کو 1-1 کروڑ روپیہ معاوضہ دیا جائے. یہ آرگنائزیشن ایک نام متعارف کرایا گیا ہے, پاکستان پنجابی آرگنائزیشن پاکستان کے نام سے. تو ان سے پوچھتے ہیں کون کو لیڈ کر رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے, کیا تعارف ہے تھوڑا سا؟ میرا نام ہے نوید یوسفی ملی. اچھا, ہم یہاں پر اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کیا ہیں اس پہ؟ میں اس میں کارکن ہوں. اس پروگرام کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ سلیم الیاس صاحب کر رہے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ اور ایڈوکیٹ ندیم احمد صاحب کر رہے ہیں, جو کہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. درست ہے. ایڈوکیٹ صاحب کیا مطالبات ہیں؟ جی, میرا مطالبہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد بلوچستانی جو آئے روز بے گناہ پنجابیوں کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں ایتھنک بنیاد پر, نسلی بنیاد پر اور تعصب کی بنیاد پر قتل کر دیتے ہیں. میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ ان انڈین ایجنٹوں کا کلا کما کریں, ان دہشت گردوں کا صفایا کریں, اور جو پنجابی شہید ہو کر جن کی لاشیں پنجاب میں آئی ہیں انہیں فی کس 1 کروڑ روپیہ معاوضہ ادا کیا جائے اور سرکاری نوکری دی جائے. آپ کا تعلق کہاں سے ہے سر؟ میرا تعلق میاں چنو بار ایسوسی ایشن سے ہے. اچھا, اور میں پنجابی لائرز ونگ آرگنائزیشن کا صدر ہوں. اس احتجاج میں جو پنجابیوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی, جو مارے گئے, ان میں سے کسی ایک وارث یہاں پہ کوئی موجود ہے؟ سر میرے ساتھ 10 وارثان آئے ہیں جن کے جوان بچے قتل کر دیے گئے ہیں. موجود ہیں بچے بھی موجود ہیں, خاتون بھی موجود ہیں, لواحقین بھی موجود ہیں میرے ساتھ. ان کو بلائیں سر تاکہ ان کو دکھایا جا سکے. کہ جو مسنگ پرسنز موجود ہیں جن کی تصویریں لے کے یہاں پر بیٹھتے ہیں, بات چیت ہے, یہاں پر انٹرویو نہیں ہے. ان کے لواحقین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو لوگ کیا نام ہے باجی؟ میرا رخسانہ بی بی ہے. کیڑے علاقے دے ہو؟ میاں چنو سے. میاں چنو. تھوڑا کون مارا گیا ہے؟ میرا بیٹا. کتنی عمر تھی؟ 13 سال. 13 سال. وہ بلوچستان گیا ہوتا؟ 18 سال کا ہے. نہیں 13 سال کا بچہ تھا. 13 سال سے بڑا ہے نا. نہیں اس کی عمر 18 سال کا ہے. ہاں جی, ہاں جی. اچھا, ہاں جی. تو کیا نام تھا اس کا؟ ساجد محمود. ساجد. یہ کب مارا گیا ہے؟
कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। कदू कदू मारा गया है? यानी कि साल हो गए उसको। साल मारा गया? हाँ जी। ते साल तुसी किसे अपना इदारे कोल रियासत कोल गए हो? नहीं नहीं, किसी के पास भी नहीं गए हैं। हमारे घर भी कोई भी नहीं आया। अच्छा, कोई आया भी नहीं? रियासत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया? नहीं, कोई बंदा भी कोई मदद भी नहीं की गई? किसी ने मदद किया। तो आज आप किससे मुतालबा कर रही हैं? किन को मुतालबा कर रहे हो? हुकूमत पाकिस्तान से के मुतालबा है? भाई साडा यानी कि इंसाफ मिलिया जावे। अच्छा, हाँ जी। और भी कोई मुतालबा है थोड़ा? हाँ, कोई हाँ जी ना भाई सानू इंसाफ मिलिया जावे। साडे भाई मजदूर बच्चे आन ना मजदूरी करन गए ते कोई साडे ते भाई यानी कि कोई नहीं। अच्छा, हाँ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝते हैं। ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? और क्यों? आप भाइयों को जिम्मेदार समझते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੁਕਮਾ ਤੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। बड़ा भाई ये बात ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ। मैं चल रहा है। हाँ, तू खातून आप जा सकते हो। आप मेरे साथ आ जाओ। आगे 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 आगे। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शान। क्या नाम है थोड़ा? नवीद अहमद। नवीद अहमद, आपका कौन मारा गया है? मेरे सात मेरे भतीजे हैं 7 भतीजे हैं जी। ये इकट्ठे गए होते बलोचिस्तान? हाँ, इकट्ठे गए थे। कहाँ क्या मुख्तलिफ करते दुकानों पे ये नए को काम करते थे, मुख्तलिफ दुकानों पे शाम को सारे। किस इलाके में? सुरबंदर हैं? सुरबंदर ग्वादर। अच्छा, ये गवादर में थे। ये वापस आ रहे थे, क्या कर रहे थे? ये वहाँ पे सोए हुए थे रात को। अच्छा, वो जो सोए हुए जिनको मारा गया था? 9 मई 2024 को जी। ओके ओके। ठीक है, ये वो वाकया है। अच्छा, तो ये वहाँ सोए हुए थे, इनका किसी से कोई लिंक नहीं था, ना ये आर्मी के साथ थे ना किसी के साथ थे, ये मजदूर लोग थे। अच्छा। और हमें वहाँ बच्चों को इतना बेदर्दी से मारा गया कि हम उनकी लाशें नहीं देख सके। अच्छा, इतनी बेदर्दी से मारा, किसी की आंख नहीं है, किसी का कान नहीं है, किसी का माथा नहीं है, और हमें मेडिकल भी नहीं दिया गया। अच्छा। और जो उन्होंने रिपोर्ट बनाई है मेडिकल तो हमारी हुकूमत बनाती है ना, अस्पताल बनाते हैं। सर, मेडिकल बनाना था गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने, तो क्यों नहीं बनाया उन्होंने नहीं बनाया। हमने एहतियाज भी किया, हमें उन्होंने मेडिकल भी नहीं दिया। बेदर्दी से ऐसे मारा जैसे कि इनका कोई है ही नहीं, क्योंकि हम पंजाबी। उनके जेब से कोई हमें कुछ चीज नहीं मिली, हमें कुछ चीज नहीं मिली उनकी। हमें जैसे पता चले कि ये क्या मारा है, क्या पैगाम दिया गया, कोई ऐसी बात? हमें कुछ ही नहीं पता चला। अच्छा, हमें सिर्फ लाशें दी गई हैं, वो भी बंद। बिल्कुल। ये आपको याद होगा, मजदूरों का कत्ल किया गया था, और ये जो बता रहे हैं कि 7 इनके भतीजे थे, एक ही जगह सोए हुए थे और उनको मारा गया, लेकिन ये बता रहे हैं कि मेडिकल तक नहीं दिया गया, और उन दहशतगर्दों ने क्यों मारा कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं। उन्होंने बेलों ने सिर्फ अपनी वो कबूल की थी, हमने मारा है। और उनके दहशतगर्द सर 9 मई 2024 की दरमियानी रात थी। 24 9 मई 25 9 मई और आज अगस्त चल रहा है जी हाँ। तो मेरे भाई ने इससे पहले कहाँ कहाँ आवाज उठाई? हमने हाईवे भी बंद किया, था। कहाँ पे? खानेवाल शामकोट। हाईवे भी बंद किया हमने, सी पे भी बंद किया, लेकिन हमारी किसी ने सुनी। सीएम साहब ने कहा मैं आ रही हूँ, लेकिन सीएम साहब हमारे पास नहीं आई। से मुराद मरियम नवाज साहब हमारे पास नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। कोई मदद, कोई इमदाद कोई नहीं आई हमारे पास आई। लेकिन क्या हम उनकी मदद क्या करें जब हमारे बदल नहीं है उनका। सर अब हमारे देखें, नेमल बदल कोई भी नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता, रियासत भी नहीं दे सकती है। कम से कम ये है कि उनके बच्चे, उनके लवाहिकीन, उनके वो अफराद के जो मुतासर हैं, उनको तो कम से कम थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। रिलीफ क्या, जब वो आई नहीं, उन्हें रिलीफ क्या देना है? अभी आप लोगों की आवाज़ सुनी जा रही है, आपने अब शोर करना शुरू कर दिए। जब वो आए नहीं, उन्होंने जी मैं आ रही हूँ, नहीं आई। हमारे गांव के 16 चक है, वहाँ अरशद नदी ने नेज़ा फेंका, वहाँ पहुँच गई, लेकिन आपके पास नहीं है। हमारे पास नहीं। जब हमारी 7 लाश उठाई गई हैं, वहाँ नहीं आई। ये घर जहाँ पे 7 जनाजे उठे बैक वक्त, कोरान था, क़यामत सुगरा थी, और इस पंजाब की वज़ीर आला साहबा को इतनी फुर्सत नहीं हुई कि जाती और 2 जुमले कह के इनकी अश्क शोई। और मैं एक मीडिया पे ये बात कर रहा हूँ, खासकर हामिद मीर के खिलाफ। हामिद मीर साहब हमारे पास नहीं आए। अगर उनका बलूचिस्तान में कुत्ता मर जाए, हामिद मीर साहब वहाँ मैग लेने पहुँच जाता है। हमारे पास बंद करो बीएलए को लगाम दो, दहशतगर्द बीएलए को लगाम दो, दहशतगर्द बीएलए को लगाम दो, पंजाबियों का कत्लेआम बंद करो, वापस करें। बंद करो। अच्छा, अब सवाल ये है मेरा
सवाल ये है कि 9 मई 2024 का वाकया 25 गुजर गया, आज आप इस्लामाबाद आए हैं, एक एहतजाज यहाँ पर भी चल रहा है बलोच खवातीन का, उनसे बस कर दे। मैंने ये सवाल वहाँ पर भी रखा, उन्होंने आपके एहतजाज के हक को तस्लीम भी किया और खुश आमदीद का। आप क्या पैगाम देंगे? मैं उनका जो एहतजाज है वो है सिर्फ BLO को सपोर्ट करना। ये कहाँ सबने सुन लिया है? हाँ जी, ये कहाँ सुन लिया आपने? ये उनका काम यही है। वो मजलूमन आ जाती हैं इस्लामाबाद में। देखो उन्होंने सिंध क्रॉस किया, उसमें नहीं रोका गया, उन्होंने पंजाब क्रॉस किया, नहीं रोका गया, इस्लामाबाद आई नहीं रोका गया। हमारे बच्चे जब वहाँ जाते हैं उनको ये गोलियां क्यों मारते हैं? उनका क्या कसूर है? आपने ये कैसे इल्जाम लगा दिया कि वो ये मुलविस है? इल्जाम नहीं है उनके ये। तो अपने प्यारे गुम हैं, मारे गए हैं, किसी का बाप मारा गया, किसी का भाई, वो तो खुद एक फरियाद लेकर आए। देखो जी, दोनों मिलकर बजाइए कि हम तो उनको इंडिया का एजेंट करा देंगे। जब हमारी लाश वहाँ से अगर उनकी लाश यहाँ से जाइए, लोग मारे, उनकी लाशें यहाँ से कोई गई हैं इस पंजाब में, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, पश्तून भी हैं। कभी किसी पंजाबी ने किसी को गाली भी दी है? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी बलोच हूँ, मैं पंजाब में होता हूँ। आप बताओ, अगर बलोच ज़ात को हिट करेंगे ना तो ये तो पंजाब और देखो हम भी लोग बात करें, BLO जो है हाँ, वो इंडिया के एजेंट है। मैंने उनसे बात की, देखिए BLA के एजेंट हैं, आप बात करें, सारे बात करें, उनसे मैंने सवाल किया तो उन्होंने BLA की इन दहशतगर्द कार्रवाइयों को मजम्मत की, लेकिन आप कहते नहीं, आप भी उनके साथ हैं, ये क्यों कर रहे हैं आप? वहाँ क्यों नहीं हंगामे होते? जब हमारे पंजाबी मार जाती हैं तो वहाँ क्यों नहीं हंगामे होते? वहाँ क्यों रोड बंद नहीं होती? वहाँ ये क्यों सवाल उठाते? आज तक आपने आज तक सवाल उठाया? महाराज साहब, उनका यहाँ को मदद हम बताओ, पंजाब में उनके बंदे मारे तो गए ना, पंजाब में कोई मारा गया बताओ, पंजाब में कोई बंदा मारा गया तो हमें बताओ। पंजाबी तालिबान ने बहुत सारी कार्रवाइयाँ की। हाँ जी, पंजाबी तालिबान ने बहुत सी कार्रवाइयाँ की। पंजाबी तालिबान है ही नहीं मुल्तान में, हाँ ना, किताबें लिखी गई हैं, तालिबान है ही नहीं, किताबें लिखी गई हैं। मलिक इसहाक सब उनको कहते थे, हाँ, मलिक इसहाक वगैरह सबको कहते थे। मलिक इसहाक में जानता हूँ, जिला रमीया खान का है। हाँ, वो तो एक था ना फिरकाबाजी, वो तो एक था फिरकाबाजी शिया सुन्नी की, उसको उसको पंजाबी लेके आओ, वो है शिया सुन्नी की, वो शिया सुन्नी की है। मारे गए ना, पाकिस्तान में, पंजाब में भी मारे गए शिया सुन्नी, कोयटा में भी मारे गए, कराची में, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जंग चल रही है। ऐसी सूरत हाल में मजलूमों का एक साथ होने की बजाय तकसीम होना और इल्जाम लगाना, मजलूम बन रहे हैं वही हमारे कातिल हैं। मैं आपको साबित कर सकता हूँ। ये तो फ्रेम आप जिसको कहते हैं इसको सही तरह से इसको लाए मीडिया पे, मैं आपको बताता हूँ। बस ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं जो मजलूम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मलिक मुजाहिद हसन खोखर जी। कहाँ से ताल्लुक है मुझे? फैसलाबाद से, जंग से। आपका कौन मारा गया? मेरा पंजाबी बेटे मारे गए, एक नहीं सैकड़ों। आप सुने, आप मैंने वो तो यहाँ बैठे ना, आप इसको वो ना करें, मैनिपुलेट ना करें। आप कह रहे हैं कि जिनको मैं दहशतगर्द कह रहा हूँ उनका आपके पास क्या सबूत है? महारंग के बाप का अपना बयान है कि मैंने 250 पंजाबी मारा है, उसका बाप भी दहशतगर्द था। पूरी दुनिया के मीडिया पे आप इसको मैनिपुलेट ना करें। नहीं, रेफरेंस यही है, पूरी दुनिया की मीडिया पे आ रहा है। जो सुबह शाम शनाख्ती कार्ड दे के ऐसा जेनोसाइड दुनिया में कहीं होता है। हाँ, बलोच का वालिद ने ये स्टेटमेंट जो आप कह रहे हैं कि 250 बंदा मैंने मारा है, हाँ, वो बयान आपने कहाँ पढ़ा? वो सारी अखबारों में पढ़ा, आप साफियों ने हमें बताया, हर अखबार में, हर जरीदे में, कहाँ पे? सोशल में। यार ये तो आप देखो, आप कर रहे हो, मतलब मैनिपुलेट कर रहे हो। दहशतगर्द आके यहाँ पे बैठ जाएं, जिन्होंने मारा भी। अभी जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ उसमें आपके 10 मिसिंग पर्सन बलोचों के, जिसको कहते हैं, उसमें निकले। आपकी ISPR ने स्टेटमेंट दी, आपकी वफाकी इदारों ने स्टेटमेंट दी कि जी ये चाइना की कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट थी 4 उसमें से निकले। मैं ये कह रहा हूं, दहशतगर्दी इस मुल्क का मसला है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। ये फितना हिंदुस्तान है, हम उसके खिलाफ करें, हम बलोचों के खिलाफ नहीं खड़े। मेरा अपना ताल्लुक है उन कबाइल के अंदर, मेरी दोस्तियां हैं, मैं जाता हूँ कोयटा, मगर वहाँ पंजाबी जो है ना कारोबार अब कर सकता है
और आज से नहीं, पिछले 50 साल से आप लोग मार रहे हैं, आज से नहीं मार रहे आप लोग। अरे मुझे शामिल कर रहे हैं सर मैं आपको बलोच ही समझ रहा हूँ ना। अच्छा, बलोच जिस तरह- दहशतगर्द है? बलोच दहशतगर्द नहीं क्या कर है, रहे हैं? BLA दहशतगर्द है, ठीक है ना। बलोच आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो मुझे भी उसमें शामिल सपोर्ट कर रहे हैं। करते हैं ना वो सब दहशतगर्द है, जो उनको शेल्टर देते हैं वो सब दहशतगर्द है। जाहिर है कि जो भी साबित होगा वो दहशतगर्द होगा, लेकिन आप मुझे तो ना शामिल करें ना, मुझे भी करें कि आप भी दहशतगर्द हैं। यार अल्फाज वापस लें। नहीं गाल इस तरह है, मेरी गाल को समझो तुसा। एक मिनट मैं पढ़ गया किथा हूँ इन्हें, तुसा मेरी गाल को समझो भाई, ठीक है ना। समझाए ना, साडी झोकां दे अंदर पंजाब दी बलोच बैठे ने, उन्हां दे कोल सैकड़ा मुरब्बिया ਜ਼ਮੀਨ है, वो साडे बिरा है, साडे नाल उन्हां दा वसेब है, साडे नाल उन्हां दा मरना है, साडे नाल उन्हां दी खुशियां हैं, ठीक है। असां बलोच कौम दे खिलाफ नहीं, मगर असी हर उस बलोच दे खिलाफ हैं जेड़ा पंजाबियां को मारन वालियां दा सपोर्टर है, जेड़ा उन्हां दा जेड़ा सॉफ्ट चेहरा बन के ते मजलूम बन के आवेंदे ने इस्लामाबाद दे अंदर, तुसां सारे कवरेज देंदे हो उन्हां नूं। नहीं, कवरेज तो हम ये आपको आप नहीं चलाएंगे। कवरेज तो आपको भी दे रहे हैं, ये आप नहीं कवरेज चलाएंगे। चलो इसका डिसाइड आपने नहीं करना, मैंने करना है। तो आप नंबर दे दिया, मैं आपको दे दूंगा, नंबर दे दूंगा आपको। बाकी मली साहब करते हैं आपसे ये ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਯਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ फ्रंट में ना नू- चले सर, आप बताएं, आखिर में बताएं कि अब मजमूई तौर पर क्या ऐसे मुतालबात हों और कब तक बैठेंगे आप लोग? तो आगे हम लोग आज जो मुजाहरा कर रहे हैं, हम अपनी अफरादी कुव्वत का मुजाहरा कर रहे हैं। हम हुकूमत पंजाब की चीफ मिनिस्टर जो कि ब्लू ब्लडेड पंजाबी हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं। कौन सी? हुकूमत पंजाब की चीफ मिनिस्टर नहीं, वो क्या क्या है? मोहतरम मरियम नवाज साहिबा ब्लू ब्लडेड पंजाबी, अच्छा, जो कहती हैं कि मैं ब्लू ब्लडेड पंजाबी हूँ। जब पंजाबियों की कत्लेआम हो रही है, वो कश्मीरी हैं वैसे। आप कौन है? हाँ, आप कश्मीर, कौन है? वो कश्मीर से हैं। जरा बताएं आप अपना तारफ। मैं तो पंजाब का रहने वाला हूँ, कौन से इलाके से? रहीम खान का। रहीम यार खान के। अब आप सरायकी हैं? बिल्कुल, तो असरा की गाल करो। अच्छा, मैं पंजाबी च गाल करे सां, जी मैं करो तो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਾਇਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਾਇਕੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1962 को ਸੁਮਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। इंटेलेक्चुअल डिबेट असी किसी और टाइम कर रहे थे। ठीक है। अभी ये बताएं कि आपका क्या मुतालबा पूरा हो तो आप उठ जाएंगे। हमारा मुतालबा ये है, हमने मुतालबे पूरे होने के लिए लगातार हमने तादम मर्ग एहतजाज नहीं कर रहे। हम हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत पंजाब को और सिक्योरिटी अदारों को बताना चाहते थे कि हम पंजाबियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और BLA की जो सियासी सपोर्ट है जो कि कोट मिठन दरबार से की जा रही है, जो कि कोट मिठन दरबार से की जा रही है, कोट मिठन दरबार से? कोट मिठन दरबार के गद्दी नशीन आमिर कुरेजा पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। आमिर कुरेजा, फरीद कुरेजा, अमाद कुरेजा 100 रुकनी एक सोशल मीडिया पर ग्रोह चला रहे हैं और ये BLA को भी सपोर्ट करते हैं पंजाबियों के खिलाफ, Yes, sir. CSN को भी सपोर्ट करते हैं पंजाबियों के खिलाफ, बात हो गई। TTP को भी सपोर्ट करते हैं पंजाबियों अच्छा। के खिलाफ। ये ग्रोह जो है ये BLA को सपोर्ट करता है। लिहाजा हम आपके चैनल के जरिए मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि कोट मिठन दरबार के गद्दी नशीनों को 3 MPO या 16 MPO के तहत कुछ दिन के लिए बंद करके कुछ गद्दी दिन नशीन- क्यों? अगर वो आपके पास सबूत सुने, है सुने, कुछ तो दिन- फॉरएवर उनको बंद करना। कुछ दिन उनको बंद किया जाए और गद्दी नशीनों का तबादला ये किया वीडियो जाए। आमिर कुरेजा तक पहुंचेगी आपकी। आमिर फरीद कुरेजा की तमाम वीडियो हम तक पहुंच रही हैं, जिसमें वो पंजाबियों को गालियां देता है, जिसमें वो पंजाब को गाली देता है, जो पंजाबी को रंजीत सिंह की औलाद मैंने- कहता है। मैंने नहीं सुना उसकी है। सारी वीडियो आती है। फिर मेरे ख्याल में आपकी आंखें चश्मा लगा लेती हैं, कान आपके बंद होते हैं, आप नहीं सुनते। अब जाके आमिर फरीद कुरेजा को फॉलो करें और फिर आप सुने। अच्छा चले, मुझे मैं आपको नंबर दूंगा, आपने मुझे वीडियो लाजमी भेजनी है। आमिर फरीद वाली। आमिर फरीद कुरेजा, उसकी वीडियो देखनी है आपने, नवीद यूसुफी मल्ली, ये आप फेसबुक पे फॉलो करें, वीडियो देखें आमिर फरीद कुरेजा की, जिसमें उसने पंजाबियों को कहा है रंजीत सिंह की औलाद है।
अच्छा चलो जी, बहुत शुक्रिया आपने। क्या ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से जब ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में थे, क्या ऐसा दर्स दिया जाता था? आमिर फरीद कुरेजा ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा के मेयार जिंदगी को बहुत डाउन कर रहे हैं। इस आमिर फरीद कुरेजा ने चलो जी, अब आपने बहस जो है ना बलूचिस्तान से समेट के ख्वाजा फरीद के मज़ार पे ले आए, तो अब तक के लिए इतना ही। टीटीपी के बाद दहशतगर्द है, टीटीपी, अब तो माशाल्लाह टीटीपी को भी शामिल कर दिया आपने। टीटीपी बीएलए, क्योंकि पठानों के, पख्तूनों के, सिंधियों के माफ सब करो सरकार, मेहरबानी करो। आमिर फरीद कुरेजा सराइकी सूबे की डिमांड करते करते आप एग्री करते हैं? बीएलए को भी सपोर्ट करते हैं। ख्वाजा फरीद का दरबार दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आपके साथ बैठा हुआ इनकारी हो गया है, ख्वाजा आप करते हैं? देखो, हम जो हमारे पास सबूत नहीं है, हम वो बात नहीं करेंगे। देखें ना, ये बात कर रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारे पास सबूत नहीं है। मैं जो बात मैं यही कह रहा हूँ कि सबूत के बगैर बात नहीं करनी चाहिए। उसके पास सबूत है, वो बात वो कह रहे हैं कि फलां की आईडी फॉलो कर रहे हैं, फलां मेरी आईडी फॉलो करे जिसमें आमिर फरीद कुरेजा की अपनी वीडियो मैंने लगाई हुई है। ना करे सरकार, तो टीटीपी दहशत, सारी दुनिया के दहशत। मैं ये कहता हूँ कि आमिर फरीद कुरेजा ना मेंबर पार्लियामेंट है, ना चेयरमैन सेनेट है, ना जस्टिस है। तुसी चेयरमैन सेनेट हो? वो नहीं, मैं तो आवाम के साथ बैठा हूँ ना। वो जब वो ये कहता है कि 1951 के बाद के आने वाले पंजाबियों की जमीनों की अलॉटमेंट कैंसिल कर देंगे, हम उसके बाप की जागीर के अंदर बैठे हुए, हम जमीनें खरीद के बैठे हुए, पंजाब में रहते हैं, पंजाबी वो है। आपके एक पंजाबी, मुझे याद आया, आप जिस तनाजुर में बात कर रहे हैं, वो एक पंजाबी साहब ने एक बड़ी तकरीर की थी रहीम यार खान वालों से मुतालिक भी, सराइकियों से मुतालिक भी। तो इस तरह ना करें, नफरतें पहले बहुत ज्यादा है। मेरे भाई का नफरत फैलाना आप लोगों का हक बनता है, और हम लोग बांग्लादेश से आए हैं। वो सड़ा, फिर तो उन्होंने दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया, आपने मेरे भाई बबरलो बाईपास पे जाकर आपके ख्वाजा फरीद कुरेजा के दरबार के गद्दी चले, वहां पर जाके सराइकियों को सर, गुड नेम बताएं। मियां आसिफ अली मेरा नाम है। आसिफ भाई बैठे बैठे तो इन्होंने माशाल्लाह, हम आपकी आवाज़ हमने देखा आपको जाते हुए। जी जी। हमने कहा कि ज़ाहिर के रोज़ाना अगर उधर जाते हैं तो फिर हमारे भाई हैं, इधर भी आना चाहिए, आपकी आवाज़ सुननी चाहिए। क्या मतालबात हैं, किस सिलसिले में हैं? देखें, हमारा मुतालबा सिर्फ़ और सिर्फ सादा सा है। दो नुकाती हमारा मुतालबा है कि बलूचिस्तान के अंदर जो पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर कत्ल किया जा रहा है, वो सिलसिला रुकवाया जाए। रियासत के अंदर कोई जगह नो गो एरिया नहीं होनी चाहिए किसी कौमियत के लिए। पाकिस्तान सबका बराबर है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो जिसको मारा जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दहशतगर्दों का खात्मा होना चाहिए। ये हमारा सिंपल ये तो वो मतालबा आपका जिस पर कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता। तो यही हम लेके बैठे हुए हैं, यही हमारा सवाल क्यों नहीं कहा आप दहशतगर्द हैं, आप सपोर्ट करने वाले? मैंने कहा नहीं, दहशतगर्द जो भी है, जो आपकी आवाज़ उठाना चाहे उसको भी जो भी दहशतगर्द है, जो भी, मैं क्लियर हूँ इस मामले पे, जो भी स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करता है या कोशिश करता है या किसी किस्म की मुसल्लह जिदोजहद करता है, सियासी जिदोजहद हर किसी का हक है, हकूक़ मांगने चाहिए। मैं कहता हूँ कि कोई बंदा अगर ये मेगाफोन उठा के भी किसी के सर में मारेगा, जब तक वो इससे बात करेगा ठीक है, लेकिन जब ये उसके मुंह से निकल के अगले के सर पे लगेगा तो वो दहशतगर्द है, उसको किसी किस्म की पंजाब सपोर्ट नहीं करेगा। आपके साथ बैठे हुए बंदे ने आमिर फरीद कुरेजा के इल्जामात लगाए। देखें, वो एक यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, उनके अपने मामलात हैं, आप नहीं समझते हैं, लेकिन देखें वो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो दे रहे हैं वो देते रहें, लेकिन हमारा जो मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ, आपकी राय क्या है इसमें? देखें, मैं उस मामले पे बात लीड कर रहे हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं। नहीं, यहाँ पे लीड करने वाले और लोग हैं, हम लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। अच्छा, हाँ जी, चलें, ठीक है जी। हाँ। अब मुतालबात क्या है? हमारा मुतालबा वाज़ेह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, जो शनाख्ती कार्ड देकर पंजाबियों को कत्ल किया जा रहा है, वो सिलसिला रुकना चाहिए, और मुल्क के किसी हिस्से को किसी कौमियत के लिए नो गो एरिया नहीं बनना चाहिए। मेरे ख्याल में ये वो मुतालबात हैं जिस पर हर पाकिस्तानी एक है, और बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, चाहे वो आप केपी के किसी हिस्से में चला जाए, बलूचिस्तान के किसी कहीं चले जाए। अगर यहाँ पर बलूचिस्तान के लोग, सर आपका हो गया, मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में ये मुतालबा है, सबको अपील करता है। बाकी जो बातें आपने सुनी और इल्जामात सुने वो आपके सामने। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये लो भाई।